Hello, this is the lecture number 2 for the chapter probability of the class 12th, and we're discussing the exercise first of chapter number 13, and we have done up to question number 5, which is based on the conditional probability. Now in question number 6 to 9, if you see the book of your NCERT book, in all the cases you have to find the probability of E upon F. Now to find the probability of E upon F, we know that it is equal to probability of E intersection F upon probability of F, that the event F is already occurred. So what is the probability that probability of getting the event E? So what you have to get the probability of E upon F, you should find the probability of E intersection F and the probability of F, in which E and F is already defined. So in the first part, a coin is tossed 3 times. To make the sample space of the 3 coins when it is tossed. This is the event, head, tail, tail, then tail, tail, tail. This is tail, tail, head, tail, head, tail, and tail, head, head. These are the 8 events of the sample space when the coin is tossed 3 times. Now what is E in the first part? Head on the third toss. Third toss पर आपका head आ जाए तो ये वाली event हो गई. Then this event. थर्ड टॉस पर हेड आ जाए, दिस इवेंट एंड दिस, दे आर 4 इवेंट्स दैट वी हैव हैड ऑन द थर्ड टॉस. यहाँ पर हेड है थर्ड टॉस पर, यहाँ पर है, यहाँ एंड यहाँ. एंड व्हाट इज द एफ? एफ इज हैड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस. शुरू के 2 टॉसेस पर हेड आ जाए, तो ये हो गया हेड, हेड, टेल एंड नथिंग एल्स. हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस. तो यू हैव टू फाइंड ई अपॉन एफ. तो यू शुड हैव ई इंटरसेक्शन एफ. आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ आना चाहिए, मतलब कॉमन टू बोथ. तो एक तो ये वाली इवेंट कॉमन हो गई, केवल एक इवेंट कॉमन है, ओनली दिस, नथिंग एल्स. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने हैं? 1 2 3 4, दैट इज 4 अपॉन 8. सैंपल स्पेसेस का 8 है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? इट इज 2. 2 इवेंट है केवल, 2 अपॉन 8. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज हाउ मेनी? 1 अपॉन 8. तो यू हैव टू रिप्लेस इन दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में आपको रखना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E upon F is equal to, you know it, probability of E intersection F upon probability of F. तो intersection F की probability 1 upon 8 and F की probability we have 2 upon 8. So it is equal to 1 upon 2 only. So like this you have to find the probability of E upon F in all the parts from question number 6 to 9. From question number 6 we have only a coin is tossed 3 times. So sample space it will remain same. E and F will change. So in the second part of this question, number 6, what is F in the second part? Second part में E और F change हो रहा है. What is E? E is given that in the second part at least 2 heads, कम से कम 2 head आ जाएं. तो ये कम से कम 2 head वाली ये शुरू की 4 इवेंट हो गई. This is 1 2 3 and this at least 2 heads, कम से कम 2 head आ गए and at most 2 head. Now be very careful. At most 2 head का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 heads. तो ज्यादा से ज्यादा 2 head का मतलब 0 भी इंक्लूड होता है, तो केवल ये वाली इवेंट नहीं आएगी आपकी. तो इट विल बी हेड, हेड, टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 head. तो 1 head, 2 head एंड 0 head. 0 head भी आता है, तो बी वेरी केयरफुल. 0 head, 1 head एंड 2 head. दिस विल बी द इवेंट्स. तो एट मोस्ट में 0 इंक्लूड होता है. तो यू फाइंड द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन इसमें क्या क्या आ रहा है? हेड, हेड, हेड नहीं आ रहा, तो इट विल बी हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड एंड टेल, हेड, हेड. दीज आर द 3 इवेंट विच आर कॉमन टू बोथ. एंड नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, विच विल बी 1 2 3 4 5 6 7, 7 upon 8. Probability of F, how many? No, probability of E is 4 upon 8. 1 2 3 4. Probability of F 1 2 3 4 5 6 7, 7 upon 8. and the probability of E intersection F, common क्या है इसमें? how many? 1 2 3, 3 upon 8. and you have to find the probability of E upon F. ये आपको पता करना. तो धीरे धीरे आप डायरेक्टली फॉर्मूले में रिप्लेस करिए. so this is the method to find the conditional probability. E, F and they are common and E upon F का फॉर्मूला आपको पता है. Now in the third part of this question, the sample spaces remain the same. In the third part, what is the event E says? The event E says that at most 2 tails, ज़्यादा से ज़्यादा 2 tail हों. तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 tail का मतलब है ये वाली इवेंट नहीं आएगी. 0 tail, 1 tail and 2 tails.
तो उल्टा हो गया इसका आपका ये, ठीक है, केवल ये वाली इवेंट नहीं आएगी। टेल टेल हैड टेल एंड टेल हैड। एट मोस्ट 2 टेल का मतलब है 0 टेल, 1 टेल एंड 2 टेल। व्हाट इज द इवेंट एफ शेज एट लीस्ट 1 टेल, ज्यादा से कम एक टेल आए, कम से कम एक टेल, तो 1 टेल 2 टेल एंड 3 टेल, तो ये वाली इवेंट नहीं आएगी। तो कम से कम 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है, 1 टेल 2 टेल एंड 3 टेल्स इवेंट शुड बी देयर। तो ठीक है, अब इसमें इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। आपका इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में एक आपका ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये तो ये 2 इवेंट नहीं आएगी, 6 विल बी कॉमन। तो कॉमन हो गया हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड टेल एंड हेड टेल टेल, कॉमन ले लो दोनों में इंटरसेक्शन में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 7 है, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में भी कितना है, 7/8 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या है दोनों में, इट विल बी 6/8। और आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। फॉर्मूले में रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। कितना है कॉमन इसका, 6/8, और f कितना है, 7/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6/7। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें तो आपको कंफर्म्ड है कि आपका e अपॉन f निकालना है, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स में तो थोड़ा आसान हो गया, ठीक है, टेल टेल एंड टेल हैड। नाउ व्हाट इज e सेज इन द फर्स्ट पार्ट, e सेज दैट टेल appears on the 1 coin, एक कॉइन पर टेल आ जाए, एक कॉइन पर टेल आ जाए। f क्या है, f says that 1 coin shows head, तो ये भी सेम हो गया, एक कॉइन पर हेड आ जाए, सेम आ गया। तो इसमें तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन f में भी क्या आएगा आपका, यही सेम कॉमन आएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ f 2/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन एफ ए भी कितना हो गया, 2/4, कॉमन 2 ही है इसमें। तो हमें क्या निकालना था, e अपॉन एफ निकालना था। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि क्या था, ये भी 2/4 है, ये भी 2/4 है, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। श्योर इवेंट हो गया एक तरह से। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ओनली 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। In the second part, it says that no tails appear. E says no tails appears. तो केवल एक इवेंट हो गई। F says that no heads appears. No head appears means tail tail आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया आपका 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो गया, ये भी 1/4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो गया, 0, एक भी इवेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F आपको निकालना था इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F 0 आ जाएगा, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, 0/1/4, 0 आंसर आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 8, in up to question number 9 you have to find E upon F. Now in question number 8 a die is thrown 3 times, तो इसका सैंपल स्पेस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 and so on 1 1 6। क्या आएगा फिर, ये आ जाएगा 1 2 1 1 2 2 अप टू 1 2 6, इस तरह से ये आपका 6 1 1 6 6 1 6 6 2 अप टू 6 6 6। तो ये सैंपल स्पेस आपका हो गया 6 × 6 × 6 दैट इज 216। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। एंड व्हाट इज द इवेंट ई, इवेंट ए सेज दैट 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 आपका थर्ड टॉस पे, ध्यान दीजिएगा, 1 1 4 1 1 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा फिर, इस वाली लाइन में आएगा 1 2 4 1 3 4 अप टू 1 6 4, ऐसे यहाँ पर 2 1 4 ये वाले इवेंट में आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 2 4, ऐसे ही 2 6 4, ये कह रहा है 4 ऑन द थर्ड टॉस, ऐसे ही ये आ जाएगा आपका 6 1 6 6 4 6 6 4 नहीं 6 6, ये आपका आ जाएगा
ये आ जाएगा 614, 624 एंड अप टू 664। तो ये टोटल आपके 36 हो जाएंगे, इवेंट हो जाएगा ये 36। नाउ व्हाट इज द सेज ई एफ? एफ क्या कह रहा है? एफ सेज दैट 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट टू। तो पहले और दूसरे पर 6 और 5 आना चाहिए। 651, 652 और 656। ये आपकी 6 इवेंट हो गई। कितनी इवेंट हो गई? 6 इवेंट ऑफ एफ। ये 6 इवेंट हो गई। अब इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ गया कि तीसरे कॉइन पर यहां पर भी 4 हो और यहां पर भी 4 हो, तो एक इवेंट आएगी 654। तीसरे कॉइन पर तुम्हारा है आना चाहिए। तो कितने इवेंट हो गई हैं? इवेंट हो गई आपकी इंटरसेक्शन एफ, ये आपकी हो गई केवल एक। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? निकाल सकते हैं अब आप यहां पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी इवेंट है? ये आपके 36 था, तो हो जाएगा 36/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया? एफ में कितनी इवेंट थी आपकी? 1 2 3 6 थी, 6 इवेंट आ रही थी। 6/216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है? ये केवल 1/216, केवल एक ही इवेंट कॉमन है। प्रोबेबिलिटी निकाल लो ई अपॉन एफ। क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन? फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कितना था इंटरसेक्शन? 1/216 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 6/216। तो ये आपका 1/6 आंसर आ गया। तो 3 कॉइन्स को 3 बार फेंकने का ये सैंपल स्पेस होता है। थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेज? क्वेश्चन नंबर 9 में भी ई एफ ऑन एफ निकालना है। मदर फादर एंड सन सिट अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली। तो क्या आएगा सैंपल स्पेस? मदर फादर एंड सन, मदर फादर सन, मदर सन फादर। ये हो सकता है फादर मदर सन, फादर सन मदर, और ये सन मदर फादर और सन फादर मदर। ये इसका सैंपल स्पेस है। टोटल आपका 6 हो गया। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ई क्या कह रहा है? ई सेज दैट सन ऑन दी वन एंड, वन एंड पे सन आ जाए। तो कितने इवेंट है? यहां पर एक एंड पर है और एक यहां पर है, एक एंड पर, एक एंड पर यहां पर है और एक एंड पर यहां पर है। ये 4 इवेंट है। सन एट द वन एंड, एक एंड पर सन हो, 4 इवेंट हो गई टोटल। व्हाट इज एफ? व्हाट इज द एफ? सेज दैट फादर इन द मिडल, फादर मिडल में हो जाए। कहां पर है? फादर मदर फादर सन, मदर फादर सन। एक तो यहां पर है फादर मिडल में, एक यहां पर है सन फादर मदर। 2 इवेंट हो गई इसमें। अब ई अपॉन एफ निकालना था, तो आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? इसमें कॉमन आ रहा है मदर फादर सन, एक ये वाला ही कॉमन आ रहा है, मदर फादर सन, और एक ये वाला भी कॉमन आ रहा है, ये रहा। तो सन फादर मदर। तो 2 इवेंट यहाँ हो गई। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? ई की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 4/6। सैंपल स्पेस 6 है इसका, 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया? एफ कितना है? 2 इवेंट है केवल, 2/6। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी क्या है? 2/6 है। और आपको निकालना क्या था? हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, जो कि क्या फॉर्मूला होता है? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास? 2/6 है, ये रहा, 2/6 आया था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? ये भी 2/6 है। तो बाय चांस इसका भी 1 ही आंसर आ गया, दैट इज श्योर इवेंट है ये क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्या करना है? अगर आपको पहले सैंपल स्पेस निकालना है, देन 2 इवेंट्स विल बी डिफाइंड इन दैट क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ. Now, from question number 10 onward, you have to decide yourself. You have to find E upon F और F upon E. तो आप डिसाइड कर लिए जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, you let it equal to E, and that is already happened. You let it equal to F. तो हमेशा आपको E upon F ही निकालना है. So what is given in question number 10? A black and red die are rolled. तो ब्लैक और रेड डाई है, तो हम 2 कॉइन हमने थ्रो करें, 1 2 1 3, कितना हो जाएगा? 1 6 तक तो हो गया. कलर डिसाइड कर लेते हैं. इट इज ब्लैक एंड रेड, तो पहला मैं ब्लैक मान लेता हूं, दूसरा रेड मान लेता हूं, तो कितना हो जाएगा? 2 1
2 कहाँ तक, 2 6 तक. I will decide the first is black and next is red and so on. 6 1 6 2 up to 6 6. तो वही सैंपल स्पेस तो 36 होगा दो कॉइन्स, दो डाइस का. नाउ व्हाट इज एफ, सीट वेरी ना आपको डिसाइड करना है ई और एफ क्या पता करना है. जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो आप हमेशा ई फाइंड करिए. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम ग्रेटर देन 9. तो ई जो है जो फाइंड करना है सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए. तो वो इवेंट ले लो जिसमें सम ग्रेटर देन 9 मतलब जिसका सम 10 11 12. तो इसमें कलर से कोई मतलब नहीं है. तो 10 11 12 में कौन कौन सा हो जाएगा, 10 में आ जाएगा आपका 4 6 6 4 5 5. कलर से मतलब नहीं है. देन 11 वाला ले लो 5 6 6 5 और एक ले लो 12. तो केवल 1 2 3 4 5 6 इवेंट होगी, इसमें कलर से डिफाइंड नहीं है. और कौन सी इवेंट ऑलरेडी हैपेंड, फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9. तो ग्रेटर 9 सम का ये सम हो गया, ये इवेंट हो गया. कौन सी, गिवन दैट द ब्लैक रिजल्टेड इन बाय. ब्लैक में आपका 5 होना चाहिए. ब्लैक 5 का मतलब है ब्लैक हमने पहला वाला माना है तो मतलब पहला वाला आपका 5 होना चाहिए. पहले वाले इवेंट 5. तो कितना हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6. पहले मतलब पहला डाइस आपका ब्लैक होना चाहिए, मतलब हमने ब्लैक को पहला माना है तो पहले वाले पर आपका 5 आना चाहिए. तो ये इवेंट हो गई. इंटरसेक्शन निकाल लो. तो इंटरसेक्शन वो निकालो जिसका सम 9 से ज़्यादा हो. तो इसमें कौन कौन सा है, ये दो इवेंट कॉमन हो गई दोनों में, 5 5 एंड 5 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 36. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आई है 6 अपॉन 36. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, किसमें इवेंट है 1 2 2 अपॉन 36. तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ. जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर में और जो ऑलरेडी अकर्ड है उसको आप एफ मान लो. तो ये आपको आप डिसाइड करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. Now in the second part of this question, number 10, find the conditional probability. Sample space same है, पहला वाला ब्लैक है. Find the conditional probability of obtaining the sum 8. तो यहाँ पर जो probability निकालनी है वो sum 8 की है, तो उसको आप E मान लो. तो sum 8 कौन कौन से होते हैं, कलर से कोई मतलब नहीं है. conditional probability obtaining the sum 8, तो 8 के लिए आपके हो जाएगा 2 6 6 2 and 3 5 5 3 and 4 4. तो these are the event when the sum is 8. 2 6 6 2 3 5 4 4. और कौन सी इवेंट इसमें ऑलरेडी अकर्ड है, दैट इज द रेड डाई रिजल्टेड इन द नंबर लेस देन 4. रेड पर आपका लेस देन 4 आना चाहिए, मतलब दूसरे डाइस पर आपका लेस देन 4 आना चाहिए. लेस देन 4, रेड का आपका लेस देन 4 होना चाहिए. तो मतलब दूसरे डाई पे आपका लेस देन 4. तो 1 1 1 2 1 3, बस मानता जाएगा. 2 1 2 2 2 3. तो ये आपको डिसाइड करना है इस तरह से. कितना आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 तक. अब इसमें कॉमन क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो जिसका सम आपका क्या आ जाए, ये आ जाए. ये नहीं ले सकते, ये ले लेंगे 6 2, मतलब वो ले लो जिसमें लेस देन 4 हो. तो 5 3 आ जाएगा. ठीक है, बस दो ये मिटाएंगे क्योंकि लेस देन आपको 4 लेना है. तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता चल गया. क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 2 3 4 5 5 अपॉन 36 5 अपॉन 36. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ कितना है हमारे पास, ये इवेंट है 1 2 3 4 5 6 3 6 आर 18 18 अपॉन 36. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है देखो यहाँ से 1 2 2 अपॉन 36. तो आपको ई अपॉन एफ निकालना है और ई अपॉन एफ का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, probability of E intersection F upon probability of F. So this is the question number 10 of your first exercise, that is 13.1. We'll continue the next lecture. Thank you.